सैलरी, सैलरी का 4 कंपोनेंट बताए थे, फटाफट बताते जाइए। क्या था पहला कंपोनेंट? What was the first thing? Base pay. Second was allowance. Third was benefits and incentives. Fourth was reward and recognition. Anyone who has not written can write down. Salary was divided into 4 components for ease of understanding. The first component was base pay. The second component was allowance. Third component was benefits and incentives. Fourth component was reward and recognition. Okay. Base pay is the basic salary. We're talking about the basic salary. This basic salary is generally fixed. This is the monetary part of your salary. उसमें भी बेसिक सैलरी होती है पे स्केल में। साइड वाला दिख नहीं रहा है मैम, रिकॉग्निशन क्या लिखी है? और बेस पे, अलाउंसेस, बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, जिसमें से बेस पे हमने कर लिया, which is the basic salary, which is the fixed part, which is the monetary part, and 40 to 50% ऑफ CTC जनरली होता है। सेकंड क्या है? अलाउंसेस है। अलाउंसेस का मतलब something which is allowed in the organization for a purpose। ये वेरिएबल होता है, ठीक है, ये वेरिएबल होता है और ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, हाउस रेंट अलाउंस है ना, आपने लिखा नहीं है, you can take copy from any of your friend and write down। इसमें है। यस मैम, उसमें था एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, यस, there are ट्रैवल अलाउंस। yes, there are various types of allowances which are there। okay, I have made you write in the last class। लिखा है ना आपने? Yes ma'am। यस मैम। Today we will start with benefits। ये कंपोनेंट पढ़ने के पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा पार्ट मॉनेटरी है और कौन सा पार्ट नॉन मॉनेटरी है। जैसे बेस सैलरी जो है वो मॉनेटरी पार्ट है, जो अलाउंसेस हैं ये भी मॉनेटरी पार्ट है पर ये वेरिएबल पार्ट है। ओके, और बेनिफिट्स जब हम पढ़ेंगे तो ये ध्यान रखिए कि बेनिफिट्स में sometimes benefits can be monetary and sometimes benefits can be non monetary। अब समझिए कि बेनिफिट क्या होती है। अभी के टाइम पे because of globalization there are various MNCs। the competition among industry, among various companies is so large कि एम्प्लॉइज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और उनको रिटेन करके रखना एक बहुत बड़ा टास्क है HR डिपार्टमेंट के लिए ना। तो सैलरी तो एम्प्लॉय को मिल ही रही है, सैलरी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ अलाउंसेस, इन टर्म्स ऑफ बेसिक सैलरी, लेकिन फिर बेनिफिट्स का क्या मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में देने का? जो ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छा बेनिफिट प्लान डिवाइस करती है, ऐसा देखा गया है इन अ रिसर्च कि द टेंडेंसी ऑफ एम्प्लॉयज टू रिमेन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन टू फर्स्ट गेट अट्रैक्टिव एंड सेकंड टू गेट रिटेन is much more than the other organization। अगर आप इन्फोसिस में काम करते हैं और आपका कोई फ्रेंड CTS में काम करता है और आप दोनों को सेम ही सैलरी मिल रही है, तो आप बेनिफिट की वजह से जो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा है उसकी वजह से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन यानी कि रहने के लिए चूज करेंगे rather than leaving that organization। ओके,
आप बेनिफिट्स के बारे में थोड़ा लिख लीजिए एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. Right now, benefits are good to have in the organization. Benefits are good to have. Good to have को inverted comma में डालो. Good to have in the organization and are indirect form of compensation. And are indirect form of compensation. This could be provided inside the organization or outside the organization. Inside the organization or outside the organization. Individually or collectively. Individually or collectively. It should be applied uniformly in the organization. Ma'am, it should be applied uniformly in the organization. And could be provided for Ma'am, it should be applied in an organization. It should be applied uniformly. बराबर से. Uniform. It should be applied uniformly in the organization. For short term or long term. Right now. For short term or long term. It is good to have and it makes compensation package competitive and attractive. Ma'am, it is good to have. It is good to have in the organization. Good to have को within inverted comma डालो. फिर समझाते हैं कि benefit क्या है. It is good to have in the organization and it makes compensation package attractive and competitive. While written, done writing? Yes. Write down. While two jobs can offer the exact same salary, While two jobs के बाद? While two jobs can offer exact same salary, they can vary greatly in
they can vary greatly in terms of benefits. They can vary greatly in terms of benefits. Thus, benefits make benefits make one offer a better financial proposition than the other. 10 के बाद एक बार रिपीट कर दीजिए. Thus, benefits make one offer. Write down. Thus, benefits make one offer a better financial proposition. One offer a better financial proposition than other. Ma'am, offer या off? One, it makes one offer OFFER, one offer a better financial proposition than other. Thus, it highlights the importance of benefits. Thus, it highlights the importance of benefits. Thus, it highlights the importance of benefits. Some common examples of benefits are one minute, okay? Paid vacation. Paid vacation. Paid vacation. Paid vacation. PAID. Paid vacation. Vacations, ma'am. Vacation, yes, chutti. Paid vacation. Flexible timing. Flexible timing. Work from home. Flexible timing. Work from home. Insurance. Company insurance of Insurance. ESOP. ESOP लिख लो. Employee Stock Option Plans. ये इसका एक अलग से क्लास होगा, आपको बताएंगे उसमें. For the time being, you just write down ESOP, Stock Option Plan. क्या spelling? Write down ESOP. Okay, this is Employees Stock Option Plan. ESOP. ESOP, Employee Stock Option Plan. Okay, comma, retirement plans. Retirement plans and flexible benefit plans, FBP. कॉमा करके लिखो, ये बेनिफिट का एक टाइप होता है.
FBP, flexible benefit plans. Clear? Now you write pros of benefits. PROS. Pros of benefits. Point वाइज लिखते जाओ. Pros of benefits यानी benefits का क्या क्या फायदा होता है. 1. Write down. Increases employee recruitment. Employed ben Increases employee recruitment. It increases employee recruitment. Second, increases employee retention. Increases employee retention. Third, through FBP, which is flexible benefit plans, through FBP, employees can control their benefits. Ma'am, through FBP. Through FBP, employees can control their benefits. controller Control their benefits. अभी बताएंगे. लिख लीजिए पहले. मैम कोई बच्चा वेट Employees can control their benefits ma'am. हाँ बोलो. Benefit हाँ benefits. Employees can control their benefits. Next point. It makes compensation package of a company attractive and competitive. It makes compensation package of a company competitive and attractive. Next, write down. Written? यहाँ तक हो गया? यस मैम Next point लिखिए. Yes, ma'am. Cons of benefits. CONS cons. मतलब benefits को implement करने में क्या क्या दिक्कत आती है. Cons. Number 1. Requires time and administrative resources. Requires time and administrative resources. Next point. An exceptional communication. An exceptional communication is required. exceptional Exceptional communication is required to implement FBP. Exceptional communication is required to implement FBP. Third point. It could be costly. It could be costly. Done writing, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ध्यान से. क्या मैम
I'll tell you what is benefits. You just wrote down what is benefits. Now I'll explain it to you कि benefits क्या होता है और इसको as a component of your salary क्यों डाली जाती है और क्या importance है इसका. Yes, समझ ma'am. में नहीं। Tell me. देखिए, with the growing trend of MNCs का concept आने के बाद companies बहुत globalization, MNC is an outcome of globalization. ग्लोबलाइजेशन की वजह से एमएनसी बढ़ी है. एमएनसी आने से क्या हुआ है कि कंपनीज बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई. तो कंपनीज कॉम्पिटिटिव हो गई तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि उसके पास जो एम्प्लॉइज हैं वो उनके पास टिक करके रहे, राइट? क्योंकि आप एक टाइम के बाद स्किलफुल हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है एंड देन यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ये खासकर ज्यादा हो जाता है तब जबकि आप एक हाई लेवल एम्प्लॉय होते हैं, आप टॉप मैनेजमेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल, if a vice president of a company leaves the organization, if a CEO of the company leaves the organization, assistant general manager of a company leaves the organization, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि जो हायर अथॉरिटीज होती हैं वो लोग एक तरीके से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में ही दे आर द ब्रेन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इसीलिए उनको रोक के रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है ऑर्गेनाइजेशन. बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक वेलफेयर की तरह है, एम्प्लॉइज के लिए है, एम्प्लॉइज के बारे में है. लेकिन ओवर द इयर्स the concept of benefit has changed from merely welfare facility to for the purposes of retention of the employees and attracting the employees. For the same salary, आप Infosys में है, आपका फ्रेंड CTS में है, आपकी अगर सैलरी वही है जितनी आपके फ्रेंड को मिल रही है, in that case also you will compare the benefits. ये ज्यादा इम्पोर्टेंट तब हो जाता है जब आप एक हाई लेवल एम्प्लॉय होते हैं. से फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का, किसी अच्छी वेल ऑफ कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी अगर पैकेज अगर 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, HDFC का जो CEO है उसकी सैलरी मान लो कि 1 करोड़ रुपए है, तो क्या उसकी सैलरी में 10,000, 15,000, 3 लाख, 5 लाख, वॉट एवर यू कैन से, इतने से सैलरी बढ़ाने से उनको कोई फर्क पड़ेगा? पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अगर जिसकी सैलरी 1 करोड़ है उसके सैलरी में आप 5 लाख का इंक्रीमेंट कर देंगे, क्या उनको कोई फर्क पड़ेगा खास? नहीं पड़ेगा. No, ma'am. और अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो आप उनके लेवल ऑफ स्किल को समझ सकते हैं कि वो कितने स्किलफुल हैं. अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने स्किलफुल है, इतने रिक्वायर्ड है, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के अगर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो वहां भी तो वो उतने ही रिक्वायर्ड है. इसीलिए इनके जाने की, छोड़ के जाने की टेंडेंसी ज्यादा होती है. दे आर वेरी स्किल्ड, राइट? वो कंपनी के हेड होते हैं ऐसे लोग. तो इन लोगों को लुर करने के लिए, टू कीप देम अट्रैक्टेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, बेनिफिट्स बहुत हेल्पफुल होती है. इस लेवल पे आने के बाद ये समझा जा सकता है कि दीज पीपल आर फाइनेंशियली वेल ऑफ, पैसा बहुत है, नॉट लाइक मिडिल क्लास आदमी कि थोड़ा पैसा ज्यादा मिला तो उसकी लालच हो गई. इन लोगों के पास अपना अकोमोडेशन है, एवरीथिंग, कार, ये वो, घूमना फिरना सब कुछ होता है इस लेवल के एम्प्लॉय का, राइट? तो उनको लुर करके कैसे रखा जाए किसी ऑर्गेनाइजेशन? बेनिफिट प्लान्स इसीलिए डिवाइस होता है. ये लोअर लेवल एम्प्लॉइज के लिए भी होता है पर ये हायर लेवल पे ज्यादा होता है. जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सीनियर लेवल का एम्प्लॉय है या फिर मिडिल मैनेजमेंट है और वो अब्रॉड में काम कर रहा है, तो उसको चार्टर्ड प्लेन की फैसिलिटी, उसको उसके वाइफ, उसके बच्चों के साथ अपनी कंट्री आने के लिए साल में एक बार का टू एंड फ्रो का एयर का टिकट, ये इटसेल्फ 2-2.5 लाख कॉस्ट करेगा, राइट? यूरोप का या कहीं बाहर का हॉलिडे पैकेज, कोई पेड वेकेशन जो कंपनी स्पॉन्सर्ड हो, राइट? आपको समझ में आ रहा है ये सब चीजें? वैसी चीजें जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि यू आर अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? और
ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती है या फिर कंसेशनल रेट पे भी मिल सकती है। ये आपने लिखा है बेनिफिट्स में? ओके, राइट डाउन वन मोर पॉइंट, स्टार मार्क करके बेनिफिट में एक और पॉइंट लिखो। बेनिफिट्स कैन बी प्रोवाइडेड ईदर फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट्स। व्हाट मैम, फिर से? Benefits can be provided either free of cost benefits can be provided either free of cost or at concessional rates। मतलब कुछ पैसा आपसे लिया जा सकता है या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है। either free of cost or at concessional rates, ठीक है। और बेनिफिट्स का एग्जांपल, बेनिफिट्स क्यों दिया जाता है? इट्स लाइक अ वेलफेयर ऑफ द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। अब एमएनसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो हम बहुत सारा फॉरेन कल्चर्स को भी, एमएनसी इज मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो कि एक से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अपने जगह पे होता है और बाकी ब्रांच होता है अलग अलग कंट्रीज में। आपने देखा है कि देयर आर सम डेज व्हिच आर सेलिब्रेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन लाइक वुमेन्स डे सेलिब्रेशन। women employees को they are, you know, यस मैम। they are appreciated just to be a part of the organization। उनको कोई गिफ्ट दिया जाता है, that day केक कटिंग कराई जाती है। ये सारी चीजें क्या है? टू मेक द एम्प्लॉय फील मोर बिलोंग्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन हमारा केयर करता है छोटी छोटी चीजों के लिए, राइट? दे केयर फॉर अस। दिस विल मेक द एम्प्लॉयज फील मोर एंगेज्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन इमोशनली, ठीक है। आप देखेंगे कि कंपनीज में जैसे एक टीम को काम दिया जाता है, जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, when the team has done good in that work, उनको टीम लंच के लिए लेके जाया जाता है, पार्टीज दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली आपको चार्ज तो करेगा नहीं पार्टी के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीट के लिए लेके जाते हैं, लंच के लिए लेके जाते हैं, पिकनिक्स के लिए लेके जाते हैं, पेड वेकेशन होता है। आप इतना काम कर लिए और फिर वो तो डिपेंड करता है कि हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना रिसोर्सेज है, कितना पैसा है, उस हिसाब से बेनिफिट प्लान बनता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब वर्क फ्रॉम होम एक लग्जरी नहीं रही, कोविड में सब कुछ वर्क फ्रॉम होम हो गया, लेकिन एक टाइम पे ये भी बेनिफिट्स ही था कि कंपनी अगर किसी को ये अलाउ कर देती है कि ठीक है आप घर मत, आप ऑफिस मत आइए, आप घर से काम कर लीजिए, बस मुझे काम से मतलब। दिस वाज आल्सो अ बेनिफिट। फ्लेक्सिबल टाइमिंग इज अ बेनिफिट, है ना, कि मुझे ये मतलब नहीं है कि आप शार्प 9 बजे लॉग इन करें, अगर आप 12 बजे भी लॉग इन करते हैं तो आई वांट 1 डेज वर्क कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द डे, ओके। सो लाइकवाइज बहुत सारा अदर बेनिफिट्स भी होता है, थोड़ा सा और बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी विल स्टार्ट रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन। थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू।